प्यारे व्यूअर्स, प्यार के इस आईवी लीग और the only institution in the world जहां पर प्यार सिखाया जाता है is back. That's right. And Karan and I, as your love professors, are here for MTV Love School Season 2. Welcome to Heritage Retreat Jaipur, one of the finest, most exquisite luxury resorts situated right in the middle of the beautiful Aravali's in Kukas, Rajasthan. That's right. This beautiful retreat has 56 villas and it has a Shahi Bagh. Now let me tell you, it kind of reminds us of the era of Maharajas and royalty. And this gives you the best wedding destination because it has lavish feasts, gardens, fountains, and you know what? It's actually fit for any kind of royal palace-like venue. 56 villas are carved with interiors, contemporary furniture, and special balconies offering you to experience the opulent lifestyle of the rulers and kings of Rajasthan. Multiple dining options, exquisite banquet facilities, a state-of-the-art health club, temperature-controlled swimming pool, and an indulgent spa make it an ideal royal retreat for our 8 gorgeous love school couples. Wow, what a place to teach love. Yeah. जिस तरह से किसी भी टॉप आईवी लीग स्कूल या कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए लाखों लोग अपने एप्लीकेशंस भेजते हैं, उसी तरह MTV लव स्कूल सीजन 2 के लिए भी लाखों नहीं तो हजारों कपल्स ने अपने एप्लीकेशंस भेजे ऑल ओवर इंडिया से और कुछ बाहर से। टॉप 16 में से हम लोगों ने इवेंचुअली सिर्फ 9 कपल्स को सिलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ the amount of problems they have, और हम नहीं चाहते कि 2 ऐसे couples हों जिनकी problems similar हों, so we got all of them together here. कभी ना कभी तो बट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज समटाइम। सबसे पहले इसकी जो थिंकिंग हो गई है ना, बहुत नैरो माइंडेड हो गई है। मेरे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना, मुझे फ्रीडम नहीं देना, मुझे स्पेस नहीं देना। It's going to be a tough case to crack for us. This is what you call a male chauvinist pig. Okay, let's take those guys. हनी अर्शिया एक बहुत ही अच्छा कपल है, यंग है, बहुत रियल है। आई थिंक बहुत सारे लोग उनको देख के सीखेंगे। ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की थी। जितने भी फ्रेंड्स बनाया, फ्रेंड्स, अरे हाँ तू मेरी फ्रेंड है, तू मेरी है, तू मेरी है, इसलिए मैं भाई बनाती हूँ और कुछ रीज़न नहीं है। Pranav is a very good state because क्या है कि most नॉर्थ इंडिया में यही कपल्स होते हैं जहाँ पे लड़के में एंगर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लड़की जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है, एक रिलेशनशिप टूट जाता है, they start pushing each other. She's very insecure. मैं एक बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप नाइट आउट पे एक ही लड़के के साथ एक ही बेड पे लेटे होगे विद इन अ सिंगल ब्लैंकेट। इस रिलेशनशिप तुझे अपनी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है, तेरे आंखों से इनसिक्योरिटी टपक रही है। उसको लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत लोगों के साथ भी है, चीटिंग प्रॉब्लम है, स्लीपिंग with I think actually more than her, he's more insecure. Yeah, and there's a lot of potential in them, so Definitely. We want them in. Okay, let's take those guys. Jacqueline and Varun. Yeah. Is that your insecurity? Then say it. Say it to me right now. If I get angry again, he'll leave me and go. या तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स है या तो आपको कोई डर है इसको लेके। जैकलिन सिर्फ वरुण के साथ इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसे और कोई मिल नहीं सकता, और 100%. वरुण जैकलिन के साथ इसलिए है क्योंकि वो कुछ प्रूव करना चाहता है। लाइकेबल हैं, मुझे लगता है कि हम इन पे काम कर सकते हैं। Hemraj and
Because जहाँ से वो आता है वहाँ पर it's gonna be a big problem to accept a foreigner. It's not very easy in those societies. You love her or not? Yes or no? या आई लव हर। तू शादी करेगा उससे अभी? अब अभी के अभी मतलब यार मैंने Yes or no? अभी नहीं। Remember his face when you put that when you brought the pundit in? He's a nice guy. I think he loves his girlfriend. Do you think the girlfriend loves him? Let's find out. Bhuvan and Ranjana, a very peculiar case जहाँ पर लड़की well she does not want to get intimate and Bhuvan is in a catch-21 situation कि भाई वो करे क्या? Yeah. I am a virgin and I don't want to sleep with you. But I want to date you. So there, no means no. Obviously मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भी कुछ नीड्स हैं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। Let's get them here. Okay. Yeah. They're very complicated. Jagnoor, Monica. I think he has a lot to hide. अभी तक आप इंटीमेट नहीं हो पाई हैं इसके साथ। मनीषा, like sorry but I just hate that girl. तो वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं। Monica seems like a sweet girl, you know? She's quite open about her feelings. I think what's making her feel insecure is that he stopped midway. Then let's work on their intimacy then, because if we can work on these guys' intimacy, then we've really nailed it. Done. Okay? Take them. Hey, Sandeepan and Ipshita. She's a Bengali. It's a typical case of a girl doing really well and the guy falling more and more into, darkness and depression because of that and getting into drugs. बहुत प्यार करता था तो मैं सोची कि कंटिन्यू करूं इसके साथ। 6 साल हो गया ना, एक बॉन्डिंग सा हो गया। Ipshita needs to see her man in a different light. So then she also feels good about herself. मैंने कहा भाई साहब पिछले सीजन में तो फेल हो गया मैं, इस सीजन कर जाऊंगा और ग्रेजुएट होकर ही जाऊंगा मैं। हम दोनों ऐसे थे, हैं, हम सच में आ गए। Love professors, Karan and me welcome all of you here to Love School Season 2. Also, welcome to the beautiful space that we are at in Jaipur. आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लॉक हमने यहाँ पे क्यों खड़ा किया। देखिए, जिंदगी में अगर आपको किसी भी रोड ब्लॉक से आगे निकलना होता है या किसी भी ऐसे कमरे में घुसना होता है जहां पर कि आपको सक्सेस मिले या आपको ग्रोथ मिले, तो कोई ना कोई ताला खोल के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली, your relationship problems are nothing but those locks. It's blocking you from entering the door to a happier and healthier relationship. पहले हम लोग सोचते थे लव स्कूल में क्या होगा, सिर्फ प्यार 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 के ऊपर बातें, पर लव स्कूल अलग ही एक लाइफ है, एक जिंदगी है। यहाँ पर एक न्यू लाइफ मिली हम लोगों को। Anger, communication, immaturity, trust, understanding, commitment, honesty, responsibility, intimacy, and infidelity. These are major problems in anybody's relationship that they can overcome. जो प्रॉब्लम्स
आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स के अंदर हैं आपके लिए, आप वो ताले उठाएंगे। आप ऊपर देख सकते हैं कि एक कुछ चेन्स पड़ी हैं वहाँ पर, एक एक करके एक चेन लेंगे और उसके अंदर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो ताले उसमें बांधते रहेंगे। ये चेन्स जो हैं ये आपके पार्टनर्स की कलाई में बांधी जाएंगी। तो ताले रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग दैट्स लॉक्ड। आई थिंक इट्स द वेट, वी वांटेड देम टू फील द वेट ऑफ देयर प्रॉब्लम एवरी डे, एवरी टाइम दैट दे डू एनीथिंग। यू नो, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन तालों को, उस बोझ को अपने हाथों से बाहर फेंकें। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। अर्षा, कम ऑन। So first, trust, responsibility, anger, understanding जो कि हमारे बीच बिल्कुल नहीं है। ये बोलना कुछ और चाहता है, मैं सोच कुछ और लेती हूँ, मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, ये सोच कुछ और लेता है, तो बिल्कुल भी हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फर्स्ट इज एंगर, क्योंकि इसका गुस्सा, समझ जाओ, कम्युनिकेशन, इनमैच्योरिटी। ये देखो, अब क्या बोलूं, इससे ज्यादा इनमैच्योर और क्या एग्जांपल दूंगा। अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स इट। My Bengali beauty. Come on down. Responsibility. Okay. और Communication. Anger. Communication, Immaturity and understanding. तो ट्रस्ट भी तो है आपका इशू, आपको पता नहीं चलता वो क्या कर रही हैं ये सब। ये झूठ बोलते हैं तो एग्जैक्टली, ट्रस्ट बढ़ाइए। trust. जुगनूर एंड मोनिका। Yes, sir. Second time. और दूसरी लड़की के साथ। Okay. If you just had to choose some off the list, क्या है? सबसे पहले तो मैं एंगर चूज करूंगी। थोड़े से मूडी है ये, एकदम अचानक से इनका मूड बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत प्यार आ रहा है और उसी सेकंड मोमेंट पे एकदम गुस्सा कि क्या कर रही हो तुम ये, और फिर सॉरी बेबी। लाइक एकदम मूड स्विंग्स ना, तो कभी कभी वो पब्लिक प्लेस पे भी हो जाता है, तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। और जो प्राइवेट प्लेस में इनकी मूड स्विंग्स है उनका क्या करें? वो भी इशू है कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है जगनूर आप मोनिका को खुलने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा इशू है तो आप अपने इशू को मैं सॉर्ट कर बहुत लीजिए। ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, बट इनके सामने मैं हो नहीं पाती हूँ। एक एक्सट्रोवर्ट होता है और एक एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट होता है। लाइक There's no such thing. There's no such thing. there is no such thing, but there's a line of being extrovert. अपने यहाँ पे आया ना, second time round. If you don't want her to talk, you can leave. Choice is yours. जाना है तो जाओ. If she's happy with that, I'm okay. Oh. No. If you are happy, No. you want to leave me? No. अनुषा अगर तुम्हारी जगह होती मोनिका तो अभी तक मेरे गाल पर एक चांटा पड़ गया होता। आप मुझे छोड़ के जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। आप हैं क्या? मेरे हिसाब से तो आप एक नामर्द हैं। एक बार आपको इस शो से निकाला जा चुका है धक्के मार के, याद है वो दिन? जिल्लत थी तुम्हारे मुंह पे। हे भगवान, इस सीजन मुझे प्लीज डांट मत पड़वाओ। पिछले सीजन मैंने ऑलरेडी खाई है, सिर्फ डांट ही खाई है, तो इस टाइम थोड़ा सा प्लीज प्यार बरसाओ भगवान। मिस्टेक्स काफी लोगों से हो जाती है। मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उस बैगेज को अपनी गर्लफ्रेंड पर मत निकाल। सर मैं बैगेज को अपनी गर्लफ्रेंड पे नहीं निकाल रहा। अपनी आवाज नीचे रख जुगनूर। सर मैं बिल्कुल भी नहीं। औकात में रहो और अपनी गर्लफ्रेंड को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। एक होता है स्मार्ट, और जहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई उसी तरीके का मिलेगा। आइए आइए प्लीज आइए। फर्स्ट वन इज एंगर। मुझे लगता नहीं कि मेरा गुस्सा कभी ठीक हो सकता है। कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ इज ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लास्ट वन इज इंटिमेसी। Intimacy. Immaturity, trust, honesty, infidelity. Okay, Jacqueline, come on. Anger, communication, प्यार से बैठ के बात नहीं करनी। trust, understanding, अरे वैसे commitment, बता तो दे।
जैसे ही जैकलीन लॉक्स उठा रही है वरुण, अच्छा तो तुम ये मेरे लिए ये भी लोगी। क्रिकेट चल रहा था, कमेंट्री दे रहा था। हाँ, तो कमेंट्री भी दे रहा है। जैसे कि लॉक में उसकी बटन लगी, जैसे ही कुछ लॉक उठा दिया तो धा 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 ऐसा चालू हो जाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, infidelity. Infidelity? Yeah. Let's start with the understanding. Immaturity. Communication. Liar. गुस्सा। भाई 2 ताले ले लूं उसके लिए? नहीं, फिलहाल एक। Okay. Responsibility. Trust. रसिका, मैं वहाँ तक जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि कैन यू जस्ट पिक मी अप एंड टेक मी देयर। Why is it slavery? तुम कुछ प्यार सा मोमेंट कुछ और भी कर सकती हो। रानी वानी हो गया तो तुमको गोद में उठा के लेके जाऊंगा या सर पे बैठा के लेके जाऊंगा। चलिए, आई लाइक इट। कुछ अलग कर रहे हैं, उठाइए। Just keep in mind you're on national television. Justify your act. वो भी सबके सामने। हाँ, तो ये मतलब तुम ये मुझे अकेले भी बोल सकते थे शायद, पर तुमने पूरे सबके सामने बोला। Just remember that you are on national television. Justify क्या अपनी इमेज बनाने आए यहाँ पे? Do you want me to throw you out right now? क्या करना है? She should not make a fool out of herself. Listen, you making a fool out of yourself. You understand? है क्या तू? क्या है तू? कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं? उठा के ऐसे बार मारूंगा ना। Go do whatever you want to do. मैं जो भी बोलूंगी, जो भी एंगर, कम्युनिकेशन जो भी बोलूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप वो ताला निकालो। एंगर, कम्युनिकेशन, most of the times you're very immature, Bhavya. Understanding, pick up that. Let's start with responsibility. You're quite irresponsible. Understanding. I have trust issues with you. It's getting difficult to trust you each day now. Commitment is questionable. All right, so that's it. आइए। Communication, trust, commitment, honesty, infidelity, First one, I'll go with anger, communication, immaturity, honesty, and intimacy. Done. पाशा, आप आइए। I'm taking anger. Anger? Because this is the actually main problem, and through this problem come in other problems. Like communications. I love her. Because when he anger, he can't communicate, and of course he can't understand me. Then I'm taking understanding. That's it. 1, 2, 3. खेमराज। Immaturity. Immaturity. I'm not agree. वो इमेच्योरिटी मैंने इसलिए उठाया, मैं चलो छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसके साथ क्या है, मूड स्विंग कर जाता है। ठीक है यार, मेरे को आइसक्रीम खानी थी तो साला अभी क्या, अभी आइसक्रीम खानी है। अबे भैया रात के 2-3 बजे कहाँ से लेकर के आ जाऊँ? It is not immature. Nobody can tell me how much food I have to eat. जल्दी से एंगर भी आ जाता है। तो एंगर की वजह से कम्युनिकेशन भी। Okay, Rasika. फर्स्ट वन इज एंगर। गुस्सा चढ़ता है प्रणव को? हाँ, बहुत इजीली और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इसे। मेरा रिएक्शन नॉर्मल था क्योंकि मेरे को मालूम था कि एंगर मेरे में है ही है। भड़क जाता हूँ, शेर हूँ मैं, बब्बर मेरी कास्ट है, तो भड़कना तो मेरी औकात में ही है। इमेच्योरिटी। थर्ड वन विल बी अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ा इशू है अंडरस्टैंडिंग का हम दोनों में।
मेरे को जब ताले मिल रहे थे बहुत डरा हुआ था मैं। उसके बाद मैं सोच रहा था यार ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब लोगों के सामने आने वाली है, तो मुझे पता था मेरी लगने वाली है। आइए प्रणव। It's my turn now, so I'll go for anger, then I'll go for immaturity, trust, then I'll go for understanding as well, I'll go for responsibility as well. चलिए वापस। Okay. Thank you. हम दोनों को एक्चुअली मालूम था कि क्या पिक करने वाले हैं हम लोग। तो यही तो प्यार है ना भाई, यही तो प्यार है। Okay, done? Yes. Can you just start putting all the chains on each other, please? ये चेन्स आपकी कलाइयों पर 24 घंटे बंधी रहेंगी। तो अब ये हमारे हाथों में रहने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, जब तक सॉल्व नहीं होते हैं। Yeah, right. जब तक सॉल्व नहीं होते हमें इसका बोझ झेलना पड़ेगा। कोई किसी भी वक्त पर आप इन चेन्स को नहीं उतार सकते। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स पहले दिन उन्हें लग रहा था कि ये एक टास्क जैसा है कि जाओ और ताले उठा लो, क्योंकि प्रोफेसर्स ने कह दिया है कि उन तालों का क्या मतलब है। Oh, I don't agree with you. I think maybe yeah, they थोड़ा सा nervous थे सब लोग, but I think they started opening up from that day, and I was kind of surprised that they were picking up. Some of them picked up a lot of issues. So. So A, B and C कैटेगरीज में हमने उन्हीं को बोला अपने आप को डालने के लिए, बिकॉज आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि उनका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है। तो हम चाहते थे कि इस चॉइस को वो बना तो ले, लेकिन बाद में फिर वो सोचे कि यार जो करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। लव स्कूल के कपल्स को एक चांस दिया गया टू चूज देयर रूम्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ प्रॉब्लमैटिक देयर रिलेशनशिप वाज, लेकिन कपल्स ये नहीं जानते थे कि हर रूम का एक अलग ट्विस्ट था। We select A. I also was like we both was agree that A, because we not have this much like hard problems when people not trust each other or they cheating on each other. मैं पाशा एक रूम के अंदर एंटर किया। I see that behind one more couple coming, Bebo and Hani. Then I think, okay, they must be want to see our room. Okay, guys, come, you see how we will enjoy. मैंने ए परफेक्ट मतलब इसीलिए लिया क्योंकि मेरे साइड से मुझे जो लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो प्रॉब्लम, मतलब हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है जो यहाँ आगे सॉर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने बोला देख लेते हैं अब ए का क्या होगा। ये क्या लिखा गया है? आगे इसका मतलब पढ़ो। तुमने चुना है ग्रेड ए, शेयरिंग योर रूम इज द ओनली वे। मैसेज शेयरिंग का मतलब दो कपल शेयर करेंगे या स्पेस भी नहीं है, वरना 2 बेड्स होते तो लगता कि 2 कपल शेयर कर सकते हैं, पर स्पेस नहीं है। एक अननोन बंदोबंदी के साथ आपको रातें गुजारनी है, आप सोच सकते हैं कि क्या बीती होगी। हमारे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि शायद वो इररिपेयरेबल है, शायद वो ठीक हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। करेक्ट, इसलिए हमने बी चूज किया। कुछ नहीं था, खाली रूम था, मतलब मैं चिल्ला पड़ी कि क्या है। तुमने हमारे रिलेशनशिप को ग्रेड बी किया है, पता है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। दोनों ने साथ में बोला, बी तुमने पहले बोला। मैंने बी नहीं बोला था, तुम राइट में जब तुमने इतनी सारी चीजें चूज की है ना,
तुमने मुझसे ज्यादा चूज की है, तुमने मेरे को 5 टॉप दी है, मैंने 4 चूज की है यार। हेलो अरे तो मुझे क्या पता गेम देंगे। दिस इज अ गेम शो, दिस इज अ रियलिटी शो, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है, टैक्टिक्स करनी है, तो जब आपको पूछा गया तो कुछ सोच के बोलो ना, मतलब ऐसे मुंह मत खोलो। I can't stay here like that. Seriously. मुझे पता था टाइम पास के लिए नहीं बोला था। बोला ही था उसके हिसाब से, हुआ तो उसके हिसाब से, बट वो होना था, वो हो गया। रियलाइज हुआ हमको कि शायद तब हमने हम बहुत बड़ी गलती की है बी लेकर। I didn't even have a second thought because almost perfect तो हम बिल्कुल नहीं है। अगर it's complicated होता तो हम लव स्कूल में बिल्कुल नहीं आते, वो तो हम अपने आप बैठ के सॉल्व कर लेते प्रॉब्लम। तो बियॉन्ड रिपेयर वाला हमें ऑप्शन सही लगा, ऑप्शन सी। तुमने चुना है ग्रेड सी, हैंडकफ करो एंड गो टू पी। I was so irritated, मेरे को हैंडकफ्स देखते ही मेरे अंदर गुस्सा आ गया। I was like shit, एक तो पहले ही हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से मेरे को हैंडकफ्स पहन के 24/7 मुझे झेलना इसके साथ रहना पड़ेगा 24/7। हम जब अंदर पहुंचे, सरप्राइजिंग एक हैम्पर था वहाँ पे मूड्स का। अचानक से देखते हैं अब बाहर से टन 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 घंटी की आवाज आती। वरुण और जैकलिन आए, हटो 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 सब लोग, अभी ये वो हम रीड करेंगे, हम क्या रीड है? करेंगे, मतलब इसकी हीरोगिरी चालू हो गई सर की। और वो अंकल भी है तो अंकल को रिस्पेक्ट किया हम लोगों ने, क्या आगे जाइए। करना है तुमको रोमांस, come by the pool and have a dance. प्यारे students, your love professors invite all of you to the first fresher party of love school. I was very happy because मेरे को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मूड खराब हो कुछ भी हो, पर पार्टी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते। गुरमीत और काव्या के साथ क्या कर रहे हैं? वेल, पीछे लव स्कूल की पहली पार्टी चल रही है। और कभी कभी यू नो अगर घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो यू नो क्या करना पड़ता है? बर्तन तोड़ना पड़ता है। नया फॉर्मेट। मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग उनके लव प्रोफेसर्स का ओहदा लेकर खड़े हो चुके हैं, इसलिए वो लोग हमारे से पूरी बातें खुल के नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आप दोनों को यहाँ पर लेके आए हैं। This is true. Well, हाँ. We guys want you guys to be our eyes and ears. Basically like our undercover couple. Oh, interesting job. Are you completely ready? Yes, we are ready. I need information. We're ready to Okay. find out the truth. Yeah. Yeah. So we have a pen and copy ready. Yes. अबे दिमाग में करना चाहिए। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go join the party. Come on.
Look at everybody's face right now. I want to welcome a new couple to town. Gurmeet and Kavya, our new couple here. Give them a round of applause. वो देखे ही लगा था, मैंने कहा है ये कपल, मैंने कहा ये तो मैं दिल्ली से है लड़की, मैं कहा तो कोई कपल था नहीं, पिछला मैं तो किसी और के लिए लड़ रही थी, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है. And you know what? The best part about all of this is they found love on MTV. फिलहाल हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, पार्टी करने आए हैं, तो अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी के कपल्स के साथ जाइए, घुलिए मिलिए एंड हैव अ लिटिल फन. Yeah, come on, go and enjoy yourselves. जैकलीन साथ थी, वो हो या ना हो, ऑफ कोर्स मैं वो चीज़ें नहीं होने दूंगा और ना हो सकती हैं. वरुण की तो जैकलीन तो मेरी लेगी भाई. हमारे अंडरकवर कपल्स वरुण जैकलीन के हिडन इश्यूज बाहर तो नहीं ला पाए, लेकिन अब प्रोफेसर्स वर श्योर कि आगे की जर्नी में ये जरूर बाहर आएंगे. जब गुरमीत आया ना, उस पहले बंदे ने देखा, मैं उसको नोटिस कर रहा था कि बंदा क्या करते आते ही. पहले मैंने देखा कि वो बंदा आते ही ना सबको जज करने लगा कि सबसे कमजोर कौन है. सीधा उस बंदे ने हिट किया प्रणव की बंदी को. गुरमीत अपनी स्ट्रैटेजी लगाएगा. He'll do it. अनफॉर्चुनेटली वो बंदी पट गई. यार आपका बॉयफ्रेंड आपके यहाँ डांस फ्लोर पे, आपके साथ पार्टी में है, आप क्या कर रहे हो, आप किसी और के साथ नाच रहे हो डांस फ्लोर पे. जब आप चेयर लाने गए थे चेयर और नॉर्मल डांस चिपक के बहुत बुरा फील हो रहा था. मेरे को लगा था शायद से यहाँ पे आगे सुधरने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि और ही ज्यादा सुधरने वाली है. क्या कर दिया मैंने ऐसा, एक डांस करके किसी के साथ, उसमें क्या गलत हो गया, और वो भी एक नॉर्मल डांस कर रही हूँ. मैं कौन सा उसकी गोदी में थी, मैं चिपक गई थी उसके साथ. मैं क्लियरली झूठ की बात कर रहा हूँ. ट्रस्ट बनाना पड़ता है. ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइक दैट. मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड है. मेरे घर वाले पार्टीज में वो सब लोग बूज करते हैं. मेरे मम्मा तो गोलगप्पों में डाल के वोट का एवरी एंड शी न्यू. उसको मेरी फैमिली का सब पता है. बैक फॉर अ पंजाबी फैमिली इफ शी वांट्स टू कम इन माय फैमिली, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे ऐसी चीज़ें? नहीं करेंगे यार, नहीं करेंगे. मेरे को मालूम है. आई कॉट हर मेनी टाइम्स विद मेनी गाइज, नॉट इवन सिंगल गाय. Caught her like what? Sleeping in his bed. It's like not nude and everything, nothing. They were like in the same blanket. He was just my friend. और वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ऑलरेडी. मुझे नहीं लगता वो चीज़ें बार बार रिपीट करना. गुरमीत हमने कुछ टाइम पहले बूज करा, ठीक है. मैंने जस्ट एक बियर पिलाई इसको. शी वाज लाइक टोटली टुन. इसको पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ इसके टच कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ. शी वाज लाइक टोटली डम. कुछ भी नहीं मालूम. अगर हमने कुछ किया भी ना, इसको पता ही नहीं था. सुबह पूछा था, पता, कहती नहीं मुझे पता ही कुछ नहीं. Oh my God. गुरमीत और काव्या ने प्रणव राशिका के इश्यूज सक्सेसफुली बाहर निकाले. अब उनका अगला टारगेट भाव्या राशिका थे. Socialize number. Basically, you just gotta go out. You have your boyfriend. Is he too possessive? Yes. He's too possessive.
then that's a problem. You gotta find yourself a friend. As simple as that. Yeah. Just go out and meet people. Is that the best way of Like, socializing? if your priority is your career, if your priority My priority is my career. How long have you guys been dating? It's just been 6 months. It's been glad Rex kept me. Why are you guys making a big deal out of it then? He is now like very serious. But I always told him that don't think about marriage right now. And Jessica, you're just 23. Yeah, why will I think about it? About marriage. पार्टी शुरू तो बहुत एक धमाके के साथ हुई थी और पार्टी खत्म तो यार भाई साहब कुछ अलग ही लेवल पे हुई। मैंने आपसे जस्ट पूछा था एंड अकॉर्डिंग टू मी वो कोई एक्शन नहीं है जिसपे आप ये रिएक्ट करो कि मैं जा रहा हूँ किसी और लड़की के साथ सेक्स करने, और मैंने वहीं पे बात खत्म कर दी। एंड यू सेड कि तू हमेशा फाइट्स को खींचती है, तू चाहती है हमारी और लड़ाई हो, बात बढ़े, आर्ग्यू करती है। मैंने कब आर्ग्यू किया बताओ? I don't have to prove you. हाँ, प्रूव करने की जरूरत भी नहीं, मुझे सब तेरे बारे में पता है। ओके, क्या पता है? सब कुछ पता है। क्या पता? बताऊंगा सब कुछ कभी बताऊंगा। बताओगे? सब हाँ, कुछ तो सबके सामने बोल रहे हो। हाँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? सच से प्रॉब्लम हो रही है ना, आग लग रही है ना। सच क्या? हाँ, लोगों को सच दिखाओ, विक्टिम मत बनो, विक्टिम मत बनो। क्या हो गया? यार नहीं। You can discuss with anyone. नहीं भाई प्लीज अभी नहीं यार, दूसरी बार हो रहा है भाई, दूसरी बात हो रहा है। भाई हट जा यार, मेरे को तू बात कर ले भाई, मेरे को नहीं बात करनी यार। तुम लोग बात करो यार, आप जा। अपनी गर्लफ्रेंड से तो बात करने देना भाई मेरे को। नहीं यार अभी तू कर उससे बात यार, मेरे को नहीं करना। आप चले गए वहाँ से तो मैं बहुत हैप्पी थी कि फाइनली लोग अभी हंसेंगे नहीं और लोग अपना एंजॉय करेंगे पार्टी। मैं चला जाऊँ कहीं। अरे तो ठीक है ना, वहाँ पे रुक के भी क्या कर रहे थे? मेरी इंसल्ट ही कर रहे थे और सबको तमाशा दिखा रहे थे कि हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। फ्रेशर्स पार्टी में जो हुआ वो देखने के बाद हमारे लव प्रोफेसर्स जान गए थे कि इन कपल्स को अपने डीपेस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में ओपन अप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे थॉट्स जिसे आज तक उन्होंने कन्फेस नहीं किए, और ये करने से उनके बीच में क्लैरिटी आएगी और वो अपने रिलेशनशिप को और भी बेटर बना पाएंगे। लेकिन इस कन्फेशन एक्सरसाइज के दौरान ऐसी चीजें बाहर आई दैट वर बियॉन्ड शॉकिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। सो लव स्कूल 2 में आपका पहला दिन, काफी कुछ बदला है एक दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे रह के एक दूसरे को और जाना है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और या तो फिर गड़बड़ हो गई है। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। You know, over here in Love School, the most important thing is to get to know one another. And that can only happen through an ice-breaking session. Guys, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एक एक्सरसाइज है which is called the love confessions. आप लोगों का पहला दिन है और पहले दिन हम लोगों ने आपके साथ कुछ बातें की, कुछ इंटरेक्शन की, तो अब यहाँ पर हम उन कन्फेशंस के बारे में बात करेंगे एंड वील ट्राई टू ब्रेक द आइस। कन्फेशन में ऐसी बातें हमने बताई थी जो कि इतने टाइम के रिलेशनशिप में हमने कभी रिवील नहीं की थी, हम कभी बता नहीं पाए थे अपने उस फीलिंग्स को या फिर ऐसे किसी इंसिडेंट को। तो वो चाहते थे कि वो एक कन्फेशन के थ्रू हम लोग थोड़ा सा ओपन अप हो पाए और एक लव स्कूल की जर्नी स्टार्ट कर पाए। हमने आप लोगों से ये क्वेश्चंस या ये कन्फेशंस इसलिए मांगे या पूछे ताकि हमें पता चले और आप लोगों को भी पता चले कि आपको अपने बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है या आपके जहन में क्या है। यूजुअली हम अपने पार्टनर से नहीं पूछते कि यार तेरे को क्या लगता है मैं कैसा हूँ, हम अज्यूम करते हैं, राइट? ये अजम्पशन बड़ी ख़राब चीज़ है क्योंकि जब हमने अज्यूम किया है हमने सिर्फ अपने हिसाब से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के हिसाब से अज्यूम किया और ये हमेशा एक रिलेशनशिप को ख़राब करता है। इसलिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है आपके पार्टनर की जिंदगी में। आई नो इट्स गोना बी very difficult for some of you. Maybe emotional. Yeah. But don't take it to heart. This is the time to be honest. Okay? Yes. Are you all ready? Yep. अब स्टार्ट हुआ हमारा सेशन, आइस ब्रेकिंग सेशन। सबके चेहरे देखने लायक थे कि हाँ भैया अब
सच्चाई सामने आने वाली है। The first confession. My partner isn't romantic. He or she doesn't know how to make love to me. तो पहली स्टेटमेंट आई, एक धमाका आया, मतलब पहली बारी में चौका। I think it can be Monica also. सेकेंड पार्ट से मुझे लगा कि मोनिका ने शायद गलत वर्ड यूज करके एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया दैट मे बी मोनिका ने शायद ऐसा लिखा हो। Okay. जुगनूर। क्यों ऐसा लग रहा है कि मोनिका ने ये कन्फेस किया? आई थिंक बिकॉज मोनिका ने मेरे को जब डांट पड़ रही थी तो मेरे को तब भी ये इशू सामने आया था इंटीमेसी का, सो आई थॉट मे बी दिस इज अगेन द कन्फेशन दैट शी हैज मेड। एक्चुअली मोनिका ने ये कन्फेशन नहीं किया था। ये जो कन्फेशन था राशिका ने किया। राशिका, आई वॉज शॉक्ड। मतलब तोते उड़ गए मेरे यार। तभी आराम से बैठा हुआ था एंड झटका आपको पड़ता है कि आपको ऐसा खराब सा एक्यूजेशन दिया जाता है कि यू आर नॉट रोमांटिक इनफ। ऑल थैंक यू। I think my partner has to be better on, and even he is very less romantic as compared to people I've been with. Before we go further, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो आपने कन्फेशन दिया है, ये कल की जो पार्टी है उसमें जो आप दोनों के बीच में हुआ उसके बेसिस पे है कि ये पहले से ही चलता आ रहा है कि ये पहले से भी चलता आ रहा है कि वो थोड़ा लेस रोमांटिक है एज कम्पेयर टू जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरी लाइफ में एक्चुअली ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ मैं जिनके साथ पहले रही हूँ, मेरा पहला रिलेशनशिप था। आई वॉज अब्यूज्ड, आई वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड। वो एक कंपनी में ही वॉज वर्किंग। जब वो बोर हो जाता था तो ही यूज्ड टू कॉल मी एंड ही वांटेड टू हैव सेक्स ऑल द टाइम। He wanted to have all the time. मुझे गंदा लगने लगा कि what is sex? I don't want to do sex. मुझे पता नहीं है रोमांस क्या होता है, मैं भूल चुकी थी। तो मुझे ये डर है कि ऐसा कुछ आगे रोमांस ना चले जाए हमारी लाइफ से। Because when I am thinking so much about Bhavya, because I seriously respect him, I seriously love him. तो मैं नहीं चाहती कि आगे जाके हमारे बीच में इंटीमेसी चले जाए। मैं फिर से वैसा रिलेशनशिप नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। इनफैक्ट मुझे रिलेशनशिप्स पे भरोसा चला जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा मुझे शादी नहीं करनी। राशिका, आई एम सो सॉरी जो कुछ हुआ आपके पास में। आई अपोलोजाइज, बट व्हाट आई वांट टू से राशिका कि ये obviously आपको it's hurt you a lot. It's sat there in your subconscious. और वो I don't think आपने निकाल दिया. Correct. And what you need to do from today is not believe that. क्योंकि हर लड़के ऐसा नहीं है। आप इतनी strong है। If I was speaking about my past like this, I would be in tears. और आप इतनी strong है that you can say this in front of everybody and still hold your own. I want to ask you, आपने हाथ नहीं खड़ा किया था, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। There was no chance because हम दोनों तो we celebrate time a lot. मुझे ऐसा नहीं लगा था कि she would say that. Because we've been very romantic. हम लोग लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए भी जाते हैं। पता नहीं भाव्या, ये भी अंडरस्टैंड करना है कि if she's had a bad experience in her past, romance is key, okay? And not just long drives. I'm saying जब आप intimate होगा उसके साथ, sex is last
I'm saying make her feel that she's the most loved because she needs that. यार 10 में से 9 बार मैं रोमांटिक था, एक बार बस मैं रोमांटिक नहीं हो पाया, तो आप मेरे को बना रहे हो कि मैं रोमांटिक ही नहीं हूँ, तो वो 9 बार का क्या है यार? सिर्फ मैं ही देते रहूंगा कि रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 हाथ से ताली बजती है, अगर मैंने नहीं दिया होता तुम्हारा साथ ना, तो आज हम साथ में नहीं होते। Okay? Be good. All right? Let's move on. Our next confession. वाओ, अगर हमारे रिलेशनशिप में प्यार ना भी हो, my partner will still be with me for money. It's a big statement, girl. It is, but the fact of the matter is कि आप में से किसी एक ने ये कन्फेशन किया है। Nobody feels like that. I'm not sure about it, but still अभी कुछ दिन पहले ही प्रणव ने मुझे ये बोला। स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं फ्लैट पे रह रही थी बिकॉज पेरेंट्स के साथ कुछ इशू थे, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो ही इज़ द ओनली वन जो मेरे को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम। बट उस टाइम भी ऐसा था कि मैं अगर इसके घर पे जाती थी तो ही वाज लाइक, जब फाइट्स हो रही हैं इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स कि निकल मेरे घर से, नौकर कहीं की, मेरे पैसों पे पल रही है, तो ये सब चीजें हुई हैं, इसलिए मुझे लग रहा है हो सकता है। प्रणव ने ही ये कन्फेशन किया। मुझे लगता है कि रशिका मुझे प्यार करती है, लेकिन आफ्टर लव इफ आई कंसीडर अ पॉइंट, तो मेरे को लगता है वो मनी है। रशिका शायद से मेरे साथ इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि मैं फाइनेंशियली उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। लड़का लड़की को देख रहा है, फिर लड़के लड़कों को देख रहे थे, बट वो चीज रियली दैट थिंग इज आइस ब्रेकिंग। इट्स नॉट लाइक दैट सर। सबके सामने आप एक नेशनल टेलीविजन पे सब लोग देखने वाले हैं उस चीज को, तो मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ऐसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो चीजें ऐसे बोलोगे। तो जो मेरा दिमाग बोलेगा मैं तो वो लिखूंगा। तो आपके दिमाग में ये चीजें आने लग गई हैं अभी। प्रणव, नौकर, रियली? मतलब शर्म नहीं आती? तो उसने कई बार ऐसा स्टेटमेंट मेरे को मुंह पर बोला। प्रणव, शट अप।